Good morning, students of class 12th. Now we are going to start your next section of your book, of your syllabus, that is Indian economic development. We have already completed national income, right? We have completed four chapters in your macroeconomics book, and from today we will be starting your next chapters for Indian economic development. And today we are going to study about the first chapter of your Indian economic development book, that is India on the eve of independence. That what was the condition of the Indian economy on the eve of independence, when the desh got independent, right? India on the eve of independence. We are going to discuss that what was the condition of Indian economy at the point when it got independent, means what was the situation of the Indian economy in the year 1947, because that was the year when it got independent, right? So, first of all, we are going to discuss about the exploitations that were done by the Britishers, that how the Britishers made the Indian economy bad, or they how they worsened the condition, right? And we are going to discuss it in respect of different sectors, that how do they exploited the agriculture sector, how they exploited the industrial sector, and how they also exploited the international trade. Okay, so first of all, we are going to discuss about the exploitation of number one, agriculture sector. That how Britishers exploited the agriculture sector. How were they able to do so, and what were the policies that made so? Okay, see, हमारे ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हमारे देश के अंदर एक सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू लागू कर रखा था उस समय, विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज जमींदारी सिस्टम, और इन फॉर्मल वर्ड्स इट वॉज द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, राइट? और इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जिसका नाम है जमींदारी सिस्टम. नाउ लेट अस डिस्कस दैट व्हाट वाज zamindari system, or the system of land revenue, which started in the point of at the Britishers rule. Okay, देखिए, इसके अंदर बेसिकली तीन पार्टीज थी. एक ब्रिटिश गवर्नमेंट, दूसरे थे जमींदार्स, विच वर ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड ओनर्स, हमारे ओनर ऑफ द लैंड, and the third one were the tiller of the soil, or basically the farmers, right? They were the farmers, or they were the tiller of the soil. Tiller or tiller, it can be told, or they were the basically farmers, or they were the workers who used to work on the soil. Now earlier what happened कि इंडिया के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं, they didn't have a lot of land on where they can do cultivation. ज़्यादातर फार्मर्स इंडिया के अंदर ऐसे ही हैं जिनके पास छोटी ज़मीन होती थी, और अगर उनको प्रोडक्शन अच्छा करना होता था तो वो क्या करते थे, ज़मींदार से ज़मीन जो है रेंट पर लेते थे, राइट? बिकॉज ज़मींदार्स वर द लैंड ओनर्स, दे वर द पीपल हु ओन्ड अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लैंड. उनके बहुत सारी लैंड होती थी. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू टेक लैंड ऑन रेंट फ्रॉम दी जमींदार्स. की जो फार्मर है, जो फार्मर क्या करता था, जमींदार से लैंड रेंट पर लेता था, और उसके बदले क्या देगा, रेंट देगा. वो नॉर्मल सी बात है. इफ यू आर गोइंग टू टेक समबडीज लैंड फॉर यूजेज, देन यू विल हैव टू पे रेंट. नाउ व्हाट हैपेंड, दिस वाज नॉट द प्रॉब्लम. अंडर द जमींदारी सिस्टम, व्हाट ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज्ड टू डू, British government used to collect a large amount of land revenue from the जमींदार. ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, लैंड रेवेन्यू के नाम पर एक टैक्स लगाती थी, और वो टैक्स जो है
लेती थी किससे, हमारे जमींदार से, राइट। नाउ जमींदार वाज द लैंड ओनर, क्योंकि उसकी लैंड है तो वो टैक्स देगा। सो व्हाट द जमींदार यूज टू डू, जमींदार यूज टू टेक दैट पार्ट ऑफ द टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स, राइट, क्योंकि फार्मर ने लैंड ली है, वो यूज कर रहा है, तो वो जो रेंट लेता था उसके साथ साथ टैक्स भी ऐड कर देता था, कि द फार्मर नीड टू गिव द रेंट फॉर द लैंड एंड ही ऑल्सो नीड टू पे द टैक्स फॉर द लैंड टू द जमींदार, एंड द जमींदार विल गिव इट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। नाउ देयर इज डबल बर्डन ऑन द फार्मर, इसकी वजह से फार्मर के ऊपर डबल बर्डन आ गया ना, उसको रेंट भी देना है, उसको टैक्स भी देना है, राइट। तो इस वजह से क्या होता था कि फार्मर्स के पास बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता था, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती थी, कॉस्ट वॉज टू हाई, एंड दैट वॉज द रीजन दैट फार्मर्स इनकम वर वेरी लेस। फार्मर्स की इनकम ही कहां बचती थी फिर, क्योंकि लैंड वो किराए पे ले रहे हैं, राइट, उनको रेंट भी देना है और उसके लिए उसको टैक्स भी देना है। वो रेंट और टैक्स दोनों चीजें देते थे, कौन देते थे, फार्मर्स, वो जमींदार को देते थे। जमींदार वाज द पर्सन हु वाज सबमिटिंग इट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, and with that system the income of the farmers were very low, and this was the your zamindari system. So zamindars were declared as the owner of the soil, and they paid a fixed sum of money to the government by way of land revenue, and were free to extract as much as they want from the tiller of the soil, कि टिलर ऑफ द सॉइल जितना रेंट लेना चाहे ले ले, और जो है उसमें टैक्स भी ले ले बाद में रेंट के बाद, और बाद में जो है टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का जमा करवा दे और रेंट अपने पास रोक ले। फिर ड्यू टू दिस टाइलर्स और फार्मर्स गॉट मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी फॉर सर्वाइवल or no surplus left for investment. The zamindar on the other hand spent their income on the luxuries of life, and they did not do any investment on the agriculture, right. तो इस सिस्टम की वजह से जमींदार का फायदा होता था, और जो हमारा फार्मर था, जो किसान था, उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई थी, उसको रेंट भी देना पड़ता था, टैक्स भी देना पड़ता था, right, and British government was earning it and the zamindar was also earning it, but the person who was losing it was only the farmer, right. ये था हमारा exploitation of agriculture sector. Now after the exploitation of agriculture sector, the British government also exploited our industrial sector, right. I hope आपको जमींदारी सिस्टम समझ में आ गया होगा कि that what was जमींदारी सिस्टम की तीन पार्टीज थी, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार और फार्मर्स, राइट। फार्मर्स जो है जमींदार से रेंट, मतलब रेंट पर लैंड लेते थे फार्मिंग के लिए, और वो लैंड पर जो रेंट देते थे, रेंट के साथ साथ वो लोग टैक्स भी देते थे, और वो टैक्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो जमींदार सबमिट करवाता था, राइट। तो इस वजह से उन लोग के पास, उन लोग की कॉस्ट ज़्यादा हाई हो जाती थी, और जो प्रॉफिट्स थे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते थे, राइट। इसलिए उनके पास बिल्कुल ही सरप्लस नहीं बचता था। ये था जमींदारी सिस्टम, और ये थे इसके बैड इफेक्ट्स, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट हाउ द ब्रिटिश राज exploited our industrial sector, that how the industry of India was exploited by the British government, right. See, there was earlier, prior to the entry of Britishers in India, the Indian handicraft industry was very good. The products of Indian handicraft industry were highly demanded, right. ये मिटा दे रहा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। So what happened that before the entry of Britishers, our handicraft industry were in high demand, industrial sector, राइट। कौन सी इंडस्ट्री हमारी, हैंडीक्राफ्ट, जैसे हाथ के बने हुए रुमाल होते हैं, हाथ के बने हुए खिलौने होते हैं, या फिर हाथ के बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, हैंड से बने हुए प्रोडक्ट्स, तो वो हैंडीक्राफ्ट कहलाता है, राइट। तो इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रायर टू द ब्रिटिश रूल। Indian handicraft enjoyed worldwide reputation, and they had a reputation not only in India, right. इंडिया में तो थी अच्छी रेपुटेशन, बट दे ऑल्सो हैड अ रेपुटेशन आउटसाइड इंडिया, मीन्स दे वर ऑल्सो हैविंग अ गुड रेपुटेशन इन द फॉरेन कंट्रीज, राइट।
दे ऑल्सो डील विथ फॉरेन कंट्रीज की। इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अच्छे एक रेपुटेशन थी और उनकी, और बहुत ज़्यादा बिकते थे, बहुत ज़्यादा सेल होती थी उनकी, ठीक है ना। एंड क्वालिटी एंड ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी खराब कर दिया, तबाह कर दिया। एंड लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डिड दे डू इट, राइट। द फर्स्ट थिंग दैट दे डिड was they imposed heavy export duty, right? What they did was they imposed heavy export duty, and the next thing which they did was they also destroyed the domestic demand, right? मतलब उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का फॉरेन मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों खराब कर दिया, राइट। डोमेस्टिक डिमांड वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड। हाउ दे डिड इट, लेट अस अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट में लिखा है कि हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी वाज imposed on the handicraft industry, right? What happened, let us understand. See, if this is an economy and we are sending a product outside that economy, then the duty which we impose is export duty, right? कि अगर जो है, अगर कोई सामान हम इंडिया की या फिर किसी भी इकोनॉमी से बाहर की तरफ बेच रहे हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम लोगों ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट जो है नेशनल इनकम में भी समझा है कि अगर हम इंडिया से बाहर कोई सामान बेच रहे हैं, राइट, तो वो लोग क्या करते थे, उसके ऊपर एक ड्यूटी लगाते थे जिसको हम लोग कहते थे एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर उन लोगों ने क्या करा कि मान लीजिए ये सामान जो है आगे जाकर किसी एक फॉरेन कंट्री में बिक रहा है, मान लीजिए लेट अस से इट वाज बीइंग सोल्ड इन साउथ अफ्रीका, ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है ये बिक रहा है साउथ अफ्रीका में। अर्लियर द प्रोडक्ट कॉस्ट 10 रुपीज, मान लीजिए 10 रुपीज का प्रोडक्ट है और एक्सपोर्ट ड्यूटी 0 है इस समय, राइट। तो अगर इंडिया से चला वो 10 रुपीज का, उसके अंदर मान लीजिए 5 रुपए का जो है थोड़ा लॉजिस्टिक चार्जेस आ गए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई, राइट। तो जो है 15 रुपीज का हमारे साउथ अफ्रीकन जो कस्टमर है उनको पड़ा, और वो जो है उनको 15 रुपीज का पड़ गया, राइट। नाउ व्हाट दे डिड, द ब्रिटिशर्स डिड, दे इम्पोज्ड हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी। उन लोगों ने क्या किया, एक बहुत ही ज्यादा हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। मतलब कि अगर सामान जा रहा है बाहर और वो 15 रुपीज का प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर मान लीजिए 10 रुपीज की ड्यूटी लगा दी, जो अपने आप में बहुत ज्यादा हैवी है, राइट। अब इसकी कॉस्ट क्या हो गई, 10 प्लस 5 प्लस 10, नाउ द कॉस्ट इंक्रीज टू 25। जो प्रोडक्ट पहले 15 रुपीज का पड़ रहा था बिफोर ड्यूटी, आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटी इट इंक्रीज टू 25 रुपीज, राइट। अब जब कॉस्ट बढ़ गई है तो नॉर्मल सी बात है, वी हैव स्टडीड इन इकोनॉमिक्स दैट देयर इज अ लॉ ऑफ डिमांड एंड द लॉ ऑफ डिमांड विल टेक इट्स कोर्स। तो अगर प्राइस हाई हो गया है तो क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मींस व्हाट हैपेंड, द डिमांड फॉर गुड्स और द हैंडीक्राफ्ट गुड्स डिक्लाइंड, राइट। तो हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन डिमांड थी, फॉरेन डिमांड गिर के क्या हो गई, खराब हो गई, राइट। तो हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से क्या हुआ, फॉरेन डिमांड कम हो गई। आफ्टर दैट द सेकंड पॉइंट इज डोमेस्टिक डिमांड वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड। उन्होंने फॉरेन डिमांड तो खत्म कर दी हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर। उसके बाद क्या किया कि द डिमांड फॉर इंडियन the demand by Indian customers was also destroyed। उन्होंने वो कैसे डिस्ट्रॉय करा, there was a mentality which was imposed on the people of India that if you are purchasing goods made in Britain, then if you are adopting a western culture then you are superior। एक मेंटेलिटी तब से लेकर आज की डेट में भी हम लोग के ऊपर इम्पोज करी गई है कि वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर से ज्यादा अच्छा है। इफ यू आर वियरिंग अ पैंट एंड अ शर्ट, इट इज बेटर देन अ कुर्ता पजामा,
राइट, इट इज अ वेस्टर्न कल्चर, और हम लोग के ऊपर एक मेंटेलिटी इंपोज करी गई है, और वो मेंटेलिटी इवन जो है वहां से स्टार्ट हो गई थी फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, राइट. सो व्हाट दे डिड, दे played psychologically, and what they did, they stopped the demand for Indian goods, right? Because they imposed thinking on the people of India that if you are purchasing Indian made goods, then it is of a lower quality, and if you are purchasing Western made goods, then they are of a greater quality. So the demand for handicraft also declined in the domestic market. So the handicraft industry was exploited in such a way that by 2 points, heavy export duty and domestic demand was also destroyed, means foreign market was collapsed and the domestic market was also deteriorated. Okay, so I hope students you would have understood that how the agriculture sector and the industrial sector was exploited by the rulers of Britain, right? Now we will study about international trade, that how they exploited our international trade, and what were the features of Indian economy at the time of 1947. So students, we will meet in the next video. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.